students, welcome to Diya Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर and we focus on clearing your concept. We do not believe in ratification and हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. We always make you learn by understanding. So what we do is हम अपने chapters को segregate करेंगे और for each concept हम क्या provide करेंगे, questions जितने भी हमसे possible हो सकेंगे. So we do quizzes, questionnaires, discussions, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Students, let's start with the class 9 science book in which we have to do the chapter number 3, atoms and molecules. So in atoms and molecules, for today's video, we will continue with the laws of chemical combination, atom, atomic mass and atomic symbol. So these are the 4 topics we have to cover today. So let's start with the first thing. What is a chemical reaction? अब chemical reaction क्या होगा? मतलब कुछ chemical reaction ऐसी चीज होगी जिससे कि हमारा new substance क्या होगा? Produce होगा. So chemical reaction is a reaction in which 2 or more substances react to form products. So it is just like जैसे A और B हमारा react कर जाए और मुझे क्या मिले? Let's C मिल जाए. So in this reaction, this A and B are the 2 substances which are reacted to form the product C. So it is a reactant, it is product, right? So for example, we can say, let we have N2 plus H2 which gives NH3. अब N2 और N2 अलग अलग N2 और H2 क्या है? अलग अलग हमारे substances हैं जो react करके क्या देते हैं? NH3, that is ammonia. So it means a chemical reaction has taken place between N2 and H2 to give a desirable product, that is NH3. So let's balance this equation first. The 3 here and 2 here. Later on, I will tell you why is there a need to balance a chemical reaction. So this is the example for the chemical reaction. The next thing we have to discuss is the laws of chemical combination. The laws of chemical combination is given by the Lavoisier
and Joseph, they established laws which explain a lot of about the chemical reactions. उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसमें क्या 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 चीजें होती हैं, जिसके अंडर हमारे पास दो लॉज है. सो फर्स्ट लॉ वी हैव इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाम से ही पता चलता है मास जो होगा इसके अंदर वो कैसा रहेगा, वो कंजर्व रहेगा. इट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज, एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, जो बन गया प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होगा कि हमने रिएक्टेंट कितने लिए थे. लेट A प्लस बी वाला ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. इट गिव्स अस C. लेट ए का मास था x, इसका मास था y, राइट, और इसका मास था z. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, x प्लस वाई जो होगा वो z के इक्वल होगा. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स should be equals to the total mass of product. So the statement according to the law is mass can neither be created nor be destroyed. For example, we can say this is H2 plus O2, which gives us H2O, right? In this we have hydrogen and oxygen. Hydrogen का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है, mass of hydrogen is 1 grams, mass of oxygen is 16 grams, right? So the mass of 2H2 means we have 4 hydrogen here and 2 oxygen here. So mass of 2H2 is 4 into 1 and mass of O2 is 2 into 16, जिससे मुझे किसका मास मिल गया, वाटर का. वाटर का मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड कितने हाइड्रोजन है 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16, so it comes out to be 18. और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, so we will multiply it by 2. 4 plus 16 twos are 32. It is 4 plus 32 and it is 18 to 36. So it is 36 is equals to 36. So this is how the mass is conserved in a chemical reaction. Let's see some more examples in which we have N2 plus H2, which gives us NH3. It is 3, it is 2. नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास is 14 grams, hydrogen is 1 gram. So it is 14 into 2 plus 6 into 1 and it is 14 to 28 plus 6, it is 28 plus 6 is 34, right? And the mass of ammonia will be, nitrogen has the mass of 14 plus we have H3, that is 3 into 2. So 14 plus 3 is 17 into 2. It comes out to be 34. So the mass of the reactants becomes equals to the mass of products, and hence we have the law of conservation of mass. Next law we have is law of constant proportion. The law of constant proportion states that किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल सब्सटेंस, the elements are always present in a definite proportion by mass. So we have as, for example, in water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is 1:8. Water we have is H2O, in which hydrogen is 2 grams and water is 16 grams. It is 2 into 1 and it is 16. So it is 2:16 and it is 1:8. So in water molecule हमें क्या पता है कि जो हाइड्रोजन का मास होगा और मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो एक परफेक्ट रेशियो, दैट इज 1:8 में ही एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वाटर का कोई भी सोर्स
हो। Therefore हम अगर कहें कि 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर डिकम्पोज होता है, 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर डिकम्पोज होगा तो उसका मतलब होगा अगर 9 ग्राम हमारा वाटर है तो 1:8 में जो हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गिवन है तो इसमें 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है एंड 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है. So it will be always a constant. So this led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportions, जिससे हमें ये पता चलता है कि law of constant proportion का मतलब exactly वही है कि अगर कोई भी सोर्स है किसी भी कंपाउंड का, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशो होगी that will be always constant. Right? Second example is similarly in ammonia. In ammonia we have NH3 is called as ammonia. This is N, this is 3H attached to it. Right? इसमें क्या है, हाइड्रोजन हमेशा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो है हमेशा 14:3 होगा, बिकॉज नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का विल बी 3, सो इट इज 14:3 बाय मास. कोई भी सोर्स से मेरा अमोनिया बने, चाहे N2+H2 से बनता है या फिर किसी भी और चीज से बनता है, अमोनिया का रेशियो अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू मास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर 14:3 में ही प्रेजेंट होंगे. So this also leads to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportions. Next we have is Dalton's atomic theory. Dalton's के atomic theory की नीड क्या पड़ गई, ये था कि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट जो फेस कर रहे थे वो ये था कि इन जो लॉज इन्होंने दे दिए, अब इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी. तो जो हमारा ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डेल्टन, इससे क्या प्रोवाइड की, एक बेसिक थ्योरी नेचर ऑफ मैटर को लेकर. राइट, इसने एक बेसिक सी थ्योरी बताई. डेल्टन ने पिक किए आइडियाज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर व्हिच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी. राइट, उसने क्या लिया, नेम लिए एटम्स के एज गिवन बाय द ग्रीक्स और उनको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा. और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे किसी भी मैटर को, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया क्या, एटम्स. उसकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल एज लॉ ऑफ द डेफिनेट proportions. So in which he has given some postulates. We have, according to the Dalton's atomic theory, जितने भी मैटर्स होते हैं whether an element or a compound or a mixture, वो सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिसको उसने नाम क्या दिया, एटम्स. तो एटम्स क्या है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which forms an element, which forms a compound, which forms a mixture, which forms everything. Right? So the postulates under the Dalton's theory are, जितने भी मैटर्स होंगे वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको क्या नाम दिया, एटम्स. अब वो एटम्स ही है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सो as said earlier, atoms are the smallest particles. These are very tiny particles जिनसे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है. एटम्स जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं. एटम, अगर ये एक एटम है, इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती. these are indivisible. They can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Right? We can't create an atom, we can't destroy an atom. This was the second postulate given by the Daltons. The third postulate he has given is atoms of the different elements have different masses and chemical properties. अगर अलग अलग हमारे एलिमेंट्स है, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सभी एलिमेंट्स का के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर मास सबका अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग होंगी, और इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट जो है ये बताता है हमें कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनके पास क्या होता है, दे हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. द नेक्स्ट पोस्टुलेट वी हैव गिवन इज कि जो एटम कंबाइन होते हैं वो एक रेशो में कंबाइन होते हैं ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वाटर के केस में, जब वाटर
के जो एटम्स थे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये क्या हुआ, एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन हुआ, दैट इज 2:1, 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। एक और एग्जांपल हमने NH3 का किया था, जिसका मास रेशियो हमने 14:3 बोला था, लेकिन इसका जो एटॉमिक रेशियो है वो कितना होगा, 1:3। अब ये क्या करते हैं, एक होल नंबर रेशियो में एटम्स जो है कंबाइन कर जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कंबाइन करके प्रोडक्ट दैट इज कंपाउंड बनाते हैं। So this was the fourth postulate by Daltons. The next postulate is the relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. एक compound के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, किस तरीके के एटम्स होने चाहिए, वो कांस्टेंट होते हैं। ऐसे नहीं है अगर वाटर है, अगर इसमें मैं कुछ भी डालना चाहूं, मैं ऐसे ही NH3 डाल दूं तो H2O NH3 ऐसे ही बन जाएगा, नहीं। किसी भी कंपाउंड के अंदर किस तरह का एटम होना चाहिए, दैट इज इट्स काइंड एंड उसका नंबर, दिस शुड बी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। So this was the fifth postulate. The next one he has given is the atoms of the given elements are identical in mass and chemical properties. जैसे मुझे अगर ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स दे दिए, राइट, ऑक्सीजन के जो एटम्स दे दिए, तो ये कैसे होंगे, इन सबके मास भी कैसे होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और अगर मास सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, राइट, इसका मास कितना होता है, 16 होता है, तो ऑक्सीजन के हर एटम का मास 16 होगा। और ऑक्सीजन लेट हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O देता है, तो ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल में ले आऊं वो H2O ही देगा हाइड्रोजन के साथ। ऐसा नहीं है वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना देगा, अगर कंडीशंस हम सेम रखते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, सेम ही मिलेगा। सो दिस वाज द Dalton's postulate. The next thing we have is what is an atom? Atom क्या होता है, जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि atoms क्या है, these are the smallest particles जिससे एक मैटर बनता है। तो atoms क्या है, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि घर जब बनता है, राइट, तो उसमें क्या होता है, वी ब्रिक्स यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते 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 पूरा घर बनता है। ऐसे ही एटम्स क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, ये भी एक ब्रिक्स की तरह पूरे मैटर को बनाते हैं। जैसे ब्रिक्स घर बनाती हैं, ऐसे एटम्स मैटर बनाते हैं। सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो जिसके पास मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसके, एलिमेंट के। सो एटम्स का साइज कितना होगा, हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम किसी चीज से इसको ना कंपेयर कर सकते हैं, ना हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कितने छोटे होंगे। बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स अगर हम देखें, मिलियंस ऑफ एटम्स को भी मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक इतनी थिकनेस क्रिएट हो जाएगी कि एक शीट ऑफ पेपर बन जाए। जैसे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को बनाने के अंदर जितने भी एटम्स भी लगे हैं, दीज आर द मिलियंस, मोर देन द मिलियंस ऑफ एटम्स, जो कि मुझे जिनकी थिकनेस एक शीट ऑफ पेपर जितनी बनेगी अगर हम उनको स्टैक टुगेदर करते हैं तो। सो दिस इज द साइज ऑफ एटम्स। The next we have is कि एटम्स जो है इतने साइज, इतना छोटा साइज का होता है कि उनका साइज हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। जैसे एक तो होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर्स, फिर आता है माइक्रोमीटर, देन नैनोमीटर, है राइट। तो एटम्स जो है नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, और वन नैनोमीटर को स्मॉल एन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीटर स्मॉल एम से, सेंटीमीटर CM, मिलीमीटर स्मॉल एम से, तो नैनोमीटर स्मॉल एन एंड स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻⁹ मीटर्स होते हैं, तो इतना छोटा साइज होता है, नैनोमीटर्स में मेजर करना पड़ जाता है। सबसे छोटा एटम किसका होता है, वी हैव
द स्मॉलेस्ट एटम इज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका साइज सिर्फ 10⁻⁻10 नैनोमीटर्स होता है, राइट। हम इनको नहीं देख सकते ना, कि ये हमें कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास एटम्स हैं, हर चीज में एटम्स हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें नहीं देख सकते। मॉडर्न टेक्निक से हमने क्या किया है, इनकी मैग्नीफाइड इमेजेस क्या करनी स्टार्ट कर दी हैं, फाइंड आउट करनी स्टार्ट कर दी हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जब जाकर हम मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के सर्फेसेस की, जिसमें हमें एटम्स दिख जाए। The next thing we have is कि ये जो हम एटम्स अभी डिस्कस करी जा रहे ये एटम्स के सिंबल्स क्या कैसे आए, किसने दिए, और किस बेसिस पे हम किसी एटम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं इनका नाम है बर्जीलियस। इन्होंने दिया था क्या, एटम्स को सिंबल्स दिए थे। सो लेट्स वी हैव द नेक्स्ट इन विच ये IUPAC जो हमें गिवन है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो IUPAC है ना, इसने क्या दिए थे, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट हर एलिमेंट्स को नेम दिए गए थे। अकॉर्डिंग टू इट ये क्या करता है, ये सिंबल्स देता है किसी भी एलिमेंट को। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और IUPAC के अंडर जो नेम्स आते हैं फिर हम उनको बोलते हैं IUPAC नेम्स या नॉमेनक्लेचर, मतलब ये क्या देते हैं, नेम देते हैं एलिमेंट्स को। सो इट अप्रूव्स, इन्होंने अप्रूव किए नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो इनके अकॉर्डिंगली ये क्या कहते हैं कि जो सिंबल होता है एटम का, अगर मुझे कोई सिंबल देना होता है तो वो क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट लेटर हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी का नाम है गीता, तो उसका नाम गीता है, तो अगर मुझे उसके नाम को सिंबल देना है तो मैं या तो जी दूंगी या GE दूंगी, मतलब फर्स्ट लेटर या पहले 2 लेटर्स दूंगी, राइट। सो ये तो किसी के नाम को सिंबल देने की बात है, जैसे गीता का मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन अगर मुझे किसी एलिमेंट्स को अगर नेमिंग देनी है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जांपल्स के साथ। सो फर्स्ट तो ये था कि फर्स्ट लेटर या फिर पहले 2 लेटर्स से हम उसकी नेमिंग करते हैं। सेकेंडली हम क्या बोलते हैं कि जो पहला नाम होगा, जैसे अभी गीता का ही लेट एग्जांपल लेते हैं, तो अगर 2 वर्ड से इसकी नेमिंग है तो ऐसा नहीं इसको लिख सकते, पहला ही वर्ड हमेशा कैपिटल में आना चाहिए। जो सेकेंड लेटर होगा दैट शुड बी इन दी लोअर केस एंड दी first letter should be in the upper case. So this is the rule for writing the symbol for an element. For example, the symbol of lead is PB, not small p small b. Same goes for gold. Gold has the symbol of AU. U is small. It is not AU. ऐसे नहीं लिख सकते। सोडियम है Na लिखा जाता है, N कैपिटल A स्मॉल, इसको हम Na नहीं लिख सकते, राइट। सो दिस इज हाउ द नेमिंग इज, symbol representation is done. Let's see few examples. We have aluminium, in which it is capital A small l, copper capital C small u. नाइट्रोजन की नेमिंग में सिंपल अगर देना हो तो हम सिर्फ एक ही लेटर यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल N. आर्गन AR, फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O, कैल्शियम CA, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, सिल्वर Ag, कार्बन C, सल्फर S, सिल्वर Ag, sodium Na. So these are the few examples of the symbols of few elements. Now we have the names, the Latin names for the few elements. Like antimony has the symbol of Sb. लैटिन में उसका नाम क्या था, अगर इसका सिंबल देखें तो क्या नाम था इसका, स्टाइपियम इसका नाम था। कॉपर का नाम लैटिन में क्यूप्रम था, तभी इसका सिंबल क्या आया, Cu। इसका आया S और B से, इसका पहले 2 लेटर्स से। गोल्ड का नाम था ऑरम, तो AU इसका सिंबल बना। आयरन का नाम था फेरम, तो Fe बना। लेड का नाम था क्या, प्लम बम, तो इसका नाम क्या पड़ा, इट इज PB।
मरकरी था Hg, तो इसका कैसे हुआ Hg, right? मरकरी का सिंबल Hg. Let's take more examples of it. We have potassium, capital K. अब पोटाशियम में K तो कहीं नहीं आता, लेकिन इसके लैटिन नेम क्या था, केलियम था, तो वहां से K आया. सिल्वर में भी नहीं आता Ag, लेकिन अर्जेंटेनम में आता था, जो इसका सिल्वर का क्या था, लैटिन नेम था, तो Ag. सोडियम Na, which has the Latin name natrium. Tin has stannum name in Latin, so it is Sn. Tungsten is wolfram, that is W. So these are the few examples for the Latin names of the few elements. The next we have is the what is the atomic mass of element. Atomic mass क्या होता है किसी भी element का, तो atomic mass होता है, it is the absolute atomic mass. अगर जो हम देखें, अगर मुझे किसी का exact mass निकालना हो, absolute mass निकालना हो, एक atom की अगर बात करूँ ना, तो वो चीज possible नहीं है, तो हम उसका क्या निकालते हैं, हम उसका relative atomic mass निकालते हैं. तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास किसका, एलिमेंट का, एलिमेंट के एटम का मास कितना होगा. सो इट इज द relative atomic mass which can be measured, not the absolute atomic mass. One atomic mass unit is represented as 1 AMU. It is equals to the exactly 1/12 of the mass of one carbon atom, which is 1C12 carbon atom. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, उसका 1/12 अगर मैं निकालती हूँ तो it comes out to be 1 atomic mass unit, right? So the relative atomic masses of elements have been found with respect to an atom of carbon 12. तो किसी भी एलिमेंट का मुझे अगर एटॉमिक मास निकालना हो, तो एटॉमिक मास एब्सोल्यूट तो निकालते नहीं है, हम कैसा निकालते हैं, रिलेटिव. रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेट करके. सो जो हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव मास निकालेंगे. रिलेटिव मतलब रिलेट करते हुए हम क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे. और रिलेट किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन 12, दैट इज कार्बन जिसका एटॉमिक मास होता है 12, उससे रिलेट करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द 1/12 mass of the one carbon. So with this, we have come to an end of this video. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share this video with your friends, and if you haven't subscribed to our channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो please subscribe the channel and hit the bell icon for further notifications. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video session. So till then, take care. Bye-bye.